We welcome Yugalpriya Mataji. I would like to introduce her. Yugalpriya Mataji was introduced to Krishna consciousness in her early childhood days at the age of 7 years and embraced it wholeheartedly. With full dedication during her college days from 1999, being groomed under the loving association and guidance of devotees from ISKCON Chowpatty, she shifted to Pune upon her marriage. After graduation, she did diploma in finance. Her passion for work has made her venture through a significant career stock market, the Bombay Stock Exchange for 7 years, and one of the accomplished top billers at the London-based international recruitment company during a stay in Bangalore as well. Presently, she is happily settled housewife in Krishna consciousness, the career she loves deeply. She also holds a Bhakti Shastri degree coupled with teacher's training course. She is well utilizing through her passion and talents to teach and share Bhakti scriptures delightfully and joyfully. Her service extends from preaching, anchoring, and writing for girls' inspirational Chetana programs. Conducting summer camps for children, she steadily moved on conducting and organizing the memorable Hallmark 2 days annual girls' camp for teenage and girls in various parts of India for the last 20 years. Currently, under the direction of His Grace Radhesham Prabhu, she is also serving as the convener of Girls' Voice Pune and along with the team is currently leading the first of its kind ever GPTC Girls Preachers Training Course participated by 150 plus mentors and teachers across country. Besides, she has been remarkably evolving through variety of discourses and she continues for her wisdom scriptures like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, etc. Parallelly, she is also hosting an online forum called Shravanam, where deeper relevant topics like Srivatsam and the womanhood dham, etc., are held in group of ladies in the Kirtan, Krishna consciousness movement. These discourses gradually became the medium to guide, nurture, and cultivate the ladies historically and basis of scriptures, studies, devotional inputs, and practical insights. Sharing some important responsibilities, she is also aboard in couple of departments and NVCC temples like events management, coordination in festivals, NVCC. Along with her husband, Shankar Pandit Das, an equally active contributor in various services in temple, she has deeply counseling many families in Pune and Bangalore to lead holistic, happy Krishna conscious life for more than 2 decades now. Her hobbies include to connect with people and to connect people to Lord Krishna, to work towards making happy devotees, more devotees and stable devotees. We welcome you, Madhuri. Thank you. So we all know how dynamic Mataji is, correct? Actually, she doesn't need any introduction. We all know her. Yes, her services are like from extending from preaching, girls preaching, ladies preaching, congregation preaching. She's a congregation counselor into DT department and so many things. So we are very very fortunate that we have Her Grace Yugal Priya Mataji. So we welcome her by loudly chanting 3 times. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. So this time it is going to be a podcast style. So wherein we all can ask questions to her. So Mataji के lecture बहुत. So this will be Mataji Hindi plus English kind of. तो so मैंने सोचा कि माता जी के पास इतना विजडम है अंदर, सो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे हम क्वेश्चंस पूछ के बाहर. सो वॉट एवर क्वेश्चंस यू ऑल हैव, सो टू बिगिन विथ मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और आप लोग को कभी भी बीच में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड or you can pass a chat, whatever you want to, whatever you are comfortable with. Any type of questions you have in your life. uh, आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते वक्त कुछ चैलेंजेस आते हैं या फिर फीमेल्स के लिए इन पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस हैं आपको, या ड्यूटीज ऑफ वाइफ, एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस यू हैव यू कैन आस्क. So this is going to be a podcast style, Mataji. Thank you so much for accepting that. I should be actually sitting here.
सो माता जी, जब लड़कियां टीनेज में रहती हैं और उसके बाद दे गो टू कॉलेज, देन दे हिट देयर 20s में आती हैं, तो उस समय लाइफ डजंट सीम टू बी सो चैलेंजिंग, बिकॉज ऑल वी हैव टू डू इज गो टू कॉलेज, पढ़ाई कर लो, घर आओ, खाना बना हुआ रहता है गरम गरम। बट शादी के बाद काफी चैलेंजेस आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब टीन एज से उस एज में आ रहे होते हैं जहाँ पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू करना पड़ता है, सो व्हाट आर द challenges that one faces in this transition, and how can one overcome that? We'll begin with simple prayers. Om Agyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। So firstly, thank you very much for having me here. आप सबके बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे नोन फेसेस हैं, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हम टेंपल में मिलके बात करते हैं खड़े रह के, you know. So for me it's just like I know so many of you, so I don't need to be sitting here. But yeah, it's a very special occasion that I'm sitting next to Leela Radhika. So the answers may be a little different and empowered and much more enlightening to all of you. Haribol? Yeah. It's a nice... It's not working. It's not getting it. So many of you girls, I understand, pura din you have been sitting listening to lectures, investment session, grahastha session, and so many other sessions you have been already dealing with. So as soon as I entered inside, I think it's making some noise unnecessary. आप जैसे ही अंदर आए, जैसे ही मैं अंदर आई तो मैंने लीला राधिका को कहा, अरे यार लड़कियों के सोने का टाइम है यार, छोड़ दो ना उनको, you know, because it's too much of listening sometimes. But as a part of camp, we have to do this austerity. घर में अगर रहते तो शायद सोते ही रहते, right? It's very natural, बोलना भी नहीं पड़ता. So firstly, thank you for extending yourself to still sitting throughout the day, and you still have another session to go. So I'll try to keep it as simple and as light as possible. तो आप सब लड़कियां भी इस एज से गुजरी हैं, जो अभी सवाल पूछा गया है अबाउट टीनेजर्स से जो हम यूथ की ओर आते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो क्या चेंजेस होते हैं, कोई बताना चाहेगा? आपसे ही सुनूंगी मैं थोड़ा, फिर मैं कुछ बोलूंगी ताकि आप एक्टिव रहे। What happens when, yes, खुशी? You become more responsible for your life, ठीक है। उसके पहले मौज के दिन थे, राइट? और कुछ? टीनेज से यूथ, यस। हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस, क्या पॉइंट बताया है, वो बेसिक है जिसकी वजह से सारा राड़ा हो रहा है। और कुछ? यस, यू सेइंग समथिंग? ओके, सो एनीवे, सो दीज आर द टू मेजर थिंग्स, जैसे बताया गया है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगती है। सो द बेसिक ट्रांजिशन फ्रॉम टीनेज टू यूथ इज द फ्रीडम इज गेटिंग लॉस्ट। जो एंजॉयमेंट का जो हमारा फीचर होता है ना, वो ऑलमोस्ट थोड़ा कम होने लगता है, बिकॉज नाउ यू गेट इन टू दैट मूड ऑफ मैं बड़ी हो रही हूँ, यू नो। अब ये बच्ची देखो, सो बिंदास, शी इज लीस्ट बॉदर्ड, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, राइट? बट वही थोड़े बड़े होते हैं, हम ऐसे चिल्ला सकते हैं, यही फर्क होता है टीनेजर में और यूथ में, राइट? सो वी स्टार्ट लूजिंग आवर, थोड़ा इंडिपेंडेंस हमारा कम होने लगता है, वी गेट टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जोन्स, हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसमें सडनली हमें रियलाइज होता है कि पूरे हमारे फ्रेंड्स जो है वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ,
where am I going to head in life? It's a very natural feeling of insecurity. That's the first thing that we go through when we, start from teenager to youth. कि हमारे अंदर इनसिक्योरिटी होती है कि इंडिपेंडेंस लूज होने वाला है, फ्रीडम लूज होने वाला है, सडनली टेंशन बढ़ने वाला है. बट देन इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज एन इनसिक्योरिटी, इफ वी कुड टेक इट अप एज पार्ट ऑफ ग्रोथ, इट्स वेरी पॉजिटिवली एम्ब्रेस्ड इन कॉन्शियसनेस. तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे ये छोटे बच्चे भी, जब हम छोटे बच्चे से बड़े होते हैं तो बच्चा क्या हमेशा सेरेलैक ही पीता रहेगा? उसको भी लगेगा ना वो प्लेट में कितना अच्छा अच्छा मेरी मम्मी कौन का पकोड़ा खा रही है और मुझे सेरेलैक खिला रही है. राइट, इट्स वेरी नेचुरल ना. तो वैसे ही जब हम बहुत छोटे होते हैं ना तो सिर्फ सेरेलैक बेबी जैसे हैं. राइट, बट देन ग्रोथ इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. तो इसीलिए व्हेन वी मूव फ्रॉम टीनेजर टू यूथ, while we are sacrificing our freedom, our independence, our mauj, masti, maza, but we are embracing a lot of other spiritual, strength-giving aspects to our personality. और वो कौन से positive sides हैं? We become more responsible, we are more self-disciplined, we are controlled, right? We have self-control. ये सब हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा आने लगता है. We start looking at life in a little more mature manner, जो आपको नहीं बनना होता है. कौन से छोटे बच्चे को बड़ा बनना होता है? बोलो आप. किसी को नहीं बनना होता है, बट सब बनते हैं ना. So we have to accept it as part of life. डिफरेंस ये है कि अगर आप हंसते हंसते एम्ब्रेस करोगे ना तो खुशी खुशी एम्ब्रेस करोगे. I mean, you will be easy to, if you have a positive mindset, you will happily embrace it. But if you have a negative mindset, then you will definitely be averse to it. तो हमें इसे बस ये एक जर्नी की तरह देखना है, which is leading us towards growth. It's not an obstacle. It's not making you handicapped. It's empowering you more and more to face life. नहीं तो इमेजिन करिए आप बॉडी में 30 बन गए और माइंड में अभी भी नहीं 18 के हो, कैसे चलेगा? है ना? It's such a drastic contrast, right? Because life will offer you so many challenges, and if you're still thinking, no, मेरा nail art किधर है, मेरा hair क्या hair straightening करना है, या मेरा वो दुपट्टा किधर है, या वो लैक्मे का लिपस्टिक किधर है, अगर हम इसी में अटके और वहां पे पति बोल रहा है मेरा खाना किधर है. So if you don't grow up mentally, then it's going to be a full chaos, right? So better whatever life is offering you, embrace it with a positive mindset. So it offers you more growth, more empowerment, more maturity, more discrimination and strength for decision making, जो हम teenage में इतना हमारे अंदर नहीं होता है. So I think in one line we should not see it as a challenge, or rather even though they are challenges, we should embrace them voluntarily. जो हम youth से teenager से लेकर youth की ओर आगे बढ़ते हैं. I hope that answers. Hare Krishna Mataji, Dhamantanam. Please accept my humble obeisances. Mataji, my question is regarding maturity. The definition I'm hearing, especially from my mother, is that we need not to laugh in front of others. Speak, have a you're sitting in maturity of definition which I'm getting from our organization seniors is more related to the duties, not regarding how I should sit and talk and whether I should laugh or not. So, what is your opinion about this? ISKCON या कृष्णा कॉन्शियसनेस या स्पिरिचुअलिटी में ना येस और नो में आंसर नहीं होते, ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर नहीं होते. ग्रोथ मीन्स रिसेंटली आई वाज एट बारामती और सम प्लेस फॉर अ चेतना. नो, आई वाज एट कैंप फॉर होली प्रोग्राम, एंड वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्लाइड हमने दिखाया था. व्हेन यू क्रॉस द रोड यू हैव दिस ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स, राइट? वो स्ट्राइप्स होते हैं. तो आप उस पर क्या करते हो? ज़ीब्रा क्रॉसिंग जिसको हम कहते हैं, राइट? तो आप उस पर जाके क्या करते हो? खड़े रहते हो ना कि सिग्नल बंद हो जाए तो हम उस पर चल के वी कैन क्रॉस द रोड एंड गेट टू आवर डेस्टिनेशन. बट इमेजिन इफ लाइफ इज ऑलवेज ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे ही, मतलब लाइफ कैसे है? हमेशा आपको खड़े ही रहना है. इज इट गुड इनफ इन लाइफ? नॉट एट ऑल. यू वांट टू गेट गोइंग विथ लाइफ, राइट? तो वैसे ही लाइफ में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है. एंड स्पेशली हमारे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ वेरी वेरी होलिस्टिक, अकोमोडेटिव एंड अ
360 डिग्री व्यू जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना, वैसे हमारे अप्रोचेस जनरली बाय आवर आचार्यस have given us. So with respect to her question to maturity, maturity is both internal and external. That's why I wanted to first set that clear. There's no yes or no, black and white, this or that. It's no binary system. It's all accommodative. So what your parents taught you is also right. जो तुम्हारे माता पिता ने सिखाया वो भी सही है, वो बाहरी रूप से है, और जो इस्कॉन में आके तुमने सीखा वो अंदर वाला है. सो इट्स एन इंटरनल मैच्योरिटी कि हम कैसे अपने आप को ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे क्वालिटीज को कैसे बिल्डअप करते हैं. एंड एक्सटर्नल इज हाउ यू सिट, टॉक, वॉक, एवरीथिंग. लाइक आई रिमेंबर माई फादर, मैं खुद भी इस पर रिफ्लेक्ट कर रही थी जब मैंने ये टॉपिक सुना, नेवर से डाई. तो हम वेरी ऑर्थोडॉक्स तेलुगु बैकग्राउंड, तेलुगु फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं. तो अगर पैर में पायल नहीं हुआ तो सीधा एक लकड़ी पड़ता था, टक, पायल किधर है, एंड अगर हाथ में चूड़ी नहीं, एक चूड़ी, इतनी तो नहीं होती थी, एक चूड़ी नहीं हुई, ये क्या है, हमारे तेलुगु में कहते हैं बोड़ी. बोड़ी मीन्स you're like acting like a widow. What is this? So we were so scared of scared means, ऐसा लगता था, yes, this is culture. And then the aspects like, इतना हंसना नहीं है, थोड़ा जोर से मत हंसो, कम हंसो, whatever, थोड़ा जोर से मत बोलो. It's all to protect our chastity. बिकॉज जब हम छोटे रहते, जैसे छोटे बच्चे अभी दे वर स्क्रीमिंग एंड दे वर टॉकिंग लाउडली, व्हाटएवर, डिड एनीबडी माइंड हियर? क्योंकि बच्चों की आदत क्या है, थोड़ा चीखना, चिल्लाना. अब आप भी ऐसे ही करने लगोगे तो उनमें और आप में क्या फर्क है? हम बड़े हो गए ना. दैट्स व्हाट आई वांट टू रिपीट अगेन एंड अगेन. हम बायोलॉजिकली बड़े नहीं होना है, हमको बायोलॉजी के साथ साथ मेंटली भी बड़े होना है, राइट? सो शाइनेस इज एक्चुअली द ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमन. तो वो जैसे ही हम टीन्स में आते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर टीन्स में अगर हमने वो नहीं सीखा, तो जब हम 24, 25 के हो जाते हैं ना, 20s, इट बिकम्स अ चैलेंज. क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट बन चुका होता है. इसीलिए पेरेंट्स उसको टीन्स में बार बार दोहराते हैं, क्योंकि हम कच्चे घड़े के बराबर होते हैं, isn't it? Right? Because it's easy to absorb, हम ज्यादा क्वेश्चनेबल नहीं होते हैं. I mean, we don't question much others. So I think it's part of both internal and external maturity. I hope that answers your question. So you have to embrace both. कि हम internally भी सीखें कि कैसे हमारे qualities और roles and responsibilities को embrace करें. That's part of external conduct. And internal conduct is कि कैसे हम अपने आप को, that's internal conduct. And external conduct is कैसे हम चलते हैं. बहुत जोर जोर से चलना नहीं है, जोर जोर से बोलना नहीं है, या जोर जोर से हंसना नहीं है. पर इसका मतलब ये नहीं अगर आप लड़कियों के बीच में हो तो आप हंसना बंद करो. यू कम टू अ गर्ल्स कैंप एंड सी हम क्या क्या नाइट आउट्स करते हैं और क्या क्या फ्रीक आउट करते हैं. मतलब तब इजंट इट राधिका, यू डोंट नो द रेंज ऑफ फन वी कैन हैव. तो आप आ जाओ हमारे कैंप्स में, हमारे गैदरिंग्स में, हमारे फेस्टिवल्स में, चेतनास में. वो सब जो लड़के करते हैं उसका दुगना लड़कियों में पोटेंशियल है, दुगने से भी ज्यादा, दुगने से भी ज्यादा पोटेंशियल है. द ओनली थिंग इज हम दायरे में करते हैं. अ सिंपल थिंग लाइक लिटरिंग ऑन द स्ट्रीट्स, हु कैन इजीली डू इट? Men. Can women do it? No. Right? We need to have that bush, the protection of a bush. Right? तो ये बहुत स्वाभाविक है. भगवान ने हमें ऐसे बनाया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा सुना था, अगर लोहे का टुकड़ा है, सोना तो अभी बहुत महंगा हो गया, लाख रुपया हो गया है, बट लोहे का टुकड़ा है तो आप उसको इधर उधर फेंक दोगे. हीरे का टुकड़ा ऐसे फेंक दोगे आप इधर उधर? हीरे को कैसे रखोगे? संभाल के रखोगे. तो हम हीरे हैं, इसीलिए हमको इतना संभाला जाता है, राइट? दैट्स व्हाई वी नीड टू बी अंडर द प्रोटेक्शन. सो प्रोटेक्शन इज नॉट आवर लिमिटेशन. प्रोटेक्शन इज नॉट एन ऑब्स्टिकल. प्रोटेक्शन इज नॉट शट डाउन. प्रोटेक्शन is to enhance our qualities within and to protect the body that we have been given. I hope that answers. I'm sorry if it is a little stretchy. You want to add something? Please add. Perfect, माता जी. Only thing is कि जैसे माता जी ने बोला कि माता जी इसके बीच में जितना हंसना है हंसो, दिल खोल के हंसो. Yes. We have one more question. Okay. What are some things which really shouldn't be actually in a marriage? My dilemma is mainly about physical abuse. I think ये positively शुरू करें तो ज़्यादा better है कि what are the things which should be there in marriage? Marriage में कौन सी चीज़ होनी चाहिए? As we all know, marriage is on the foundation of love, trust, service and companionship. Marriage के ये 4 आधार हैं: प्रेम, सेवा, विश्वास और companionship, दोस्ती. राइट? जैसे सीता मैया राम के लिए बनी थी, या लक्ष्मी नारायण के लिए हैं,
तो इन आधार पर विवाह होता है। तो जैसे मैंने कहा उसमें प्रेम होना चाहिए। अगर आप प्रेम ही नहीं करते हो तो हम प्रेम नहीं, जैसे भगवान ने विदुर को कहा था, जब दुर्योधन ने उसे इनवाइट किया था खाने पे, तो भगवान ने क्या कहा दुर्योधन को, जहां भूख नहीं होती और जहां प्रेम नहीं होता वहां हम खाने नहीं जाते हैं। तो जहां प्रेम नहीं होता हम खाने नहीं जाते हैं, जहां प्रेम नहीं होगा क्या वहां उस घर में हम रहने जाएंगे? एब्सोल्युटली नहीं। तो मैरिज का सबसे पहला क्वालिटी है प्रेम। वी शुड, नाउ इट्स वेरी ऑब्वियस, एवरी मैरिज इज नॉट अ लव मैरिज, कि हम लव मैरिज से अरेंज तक नहीं आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज द अदर वे अराउंड, अरेंज टू लव मैरिज। तो हमारा इंडियन मेंटालिटी या हमारा सराउंडिंग ऐसा है, फर्स्ट वी गेट इन टू अरेंज मैरिज एंड देन वी आर टॉट हाउ टू लव द पर्सन, राइट? बिकॉज प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद, सेवा करते करते हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम बढ़ जाता है। बिकॉज प्रेम बढ़ाना है तो सेवा करो, सेवा करते रहोगे तो प्रेम बढ़ जाएगा। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। सो दैट्स लव। सेकेंड इज ट्रस्ट, विश्वास होना चाहिए कि ये मेरी रक्षा करेगा। वो सतपदी होती है ना, सप्तपदी, राइट? कि हम एक दूसरे के लिए रहेंगे, हम एक दूसरे की सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे। एंड थर्ड इज सर्विस, क्योंकि कोई भी परिस्थिति में, सीता मैया भी जब वनवास जाना पड़ा तो वो अपने महल के सुख को छोड़कर राम जी के साथ सेवा करने, उनकी सेवा करने वो जंगल में गई थी, और वहां जाके उन्होंने खाना बनाया। वो रानी थी, इसका मतलब ये नहीं कि उनको खाना बनाना, उनको चूल्हा फूकना आता था। ठीक है, इट्स अ गारंटी, इवन इफ शी इज लक्ष्मी और हुएवर शी इज, लक्ष्मी भी जगन्नाथ के किचन में खाना बनाती है, राइट? सो दीज आर द बेसिक एक्सपेक्टेशंस। एंड द लास्ट इज कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप मीन्स फ्रेंडशिप। अब अगर आपका कोई बेस्ट दुश्मन हो, क्या आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है? उसके साथ मारपीटी होगी, राइट? तो फ्रेंडशिप मीन्स व्हाट, वेयर यू हैव सम लाइकिंग्स टुगेदर, सम प्रेफरेंसेस, सम चॉइसेस, कंपैटिबिलिटी, ये सब मिलता जुलता है। सो वी मेक इट थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू दैट कंपेनियनशिप। इसलिए कहते हैं मैरिज मीन्स हैविंग अ, इनफैक्ट किशोरी मातरी जो मेरे काउंसलर है, वो कई बार हम लोग के साथ शेयर करते थे that marriage after 15-20 years is nothing but friendship. 15-20 साल के बाद it's like you are living with a friend and you can talk anything under the sky. You can fight for any silly thing to the biggest thing in life and you still know you are dependent on each other. मतलब गोपियां जब कृष्णा का कंप्लेन लेकर यशोदा मैया के पास आती हैं तो गोपियां यही कहती है, मैया क्या करे, तेरे कान्हा की करतूत देखकर हमें इतना मन करता है कि उसका कंप्लेन करे, बट उसकी चिकनी चिकनी या नो चुपड़ी चुपड़ी बातों में आकर या उसके मनमोहक आंखों को देखकर हम सब भूल जाते हैं। फिर वो ऐसे देखता है ना जैसे जादू, हिप्नोटाइज, दैट्स ओरिजिनल हिप्नोटिज्म बाय द वे। एवरीथिंग हैज इट्स सोर्स बैक देयर इन कृष्णा। तो जब वो इस तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं तो वो डायलॉग कहते हैं, क्या करे मैया, कहा भी नहीं जाता, कहे बिना रहा भी नहीं जाता। एंड देन फिर से कहते, ठीक है मैं इसको घर में ही रखती हूँ, नहीं नहीं मैया, इसी के लिए तो हम मक्खन निकालते हैं ताकि वो हमसे चोरी कर ले। फिर से गोपियां कहते, क्या करे मैया, यू नो, रहा भी नहीं जाता, इसके बिना दूरी सही भी नहीं जाती, सहा भी नहीं जाता इससे विरह, राइट? तो वैसे ही कंपेनियनशिप होता है ओवर अ मैरिज। नाउ व्हाट इज नॉट अलाउड इन अ मैरिज इज डेफिनेटली टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड। हम एक दूसरे को ग्रांटेड नहीं ले, एक दूसरे के साथ डिस्कशंस का स्कोप हम हमेशा रखें। Physical abuse is definitely not allowed. Exploitation is not allowed. Being self-centered, कि हम हमेशा अपने ही बारे में सोचते रहें, वो allowed नहीं है। अभी allowed नहीं है मतलब these are the symptoms of best successful marriage. शुरुआत के दिनों में मैरिज में ये सब हो ही जाता है बिकॉज किसी ने सिखाया नहीं होता है। सबको जानवा सभा, नित्यानंद सभा का फॉर्चून नहीं मिलता है, राइट? जैसे आज ही कृष्णचंद्र प्रभु आए थे, आप में से कुछ लोग सुबह थे उधर, सो आई जस्ट वेंट मेट हिम। उनको देखते ही मुझे इतनी राधा प्रिया माता जी की याद आ गई कि मैं उनका क्लास भी जब सुन रही थी ऐसे लग रहा था कि अरे ये तो हमारे 2003 के दिन है, यू नो, 2002, 2001, 2000 में हम लोग ऐसे ही लेक्चर सुनते थे कृष्णचंद्र प्रभु, राधा प्रिया माता जी से, तो ये हमारे काउंसिल मीटिंग के दिन है। सो वी वर रिमेम्बरिंग दैट। तो जैसे ही वो सेशन खत्म हुआ, मैंने प्रभु जी से बात की, माता जी के लिए पूछा, फिर मैं प्रसाद ले रही थी। फिर मैं 2 साल से, 1-1.5 साल से सोच रही थी माता जी से बात करनी है। तो जैसे ही मैं प्रसाद लेने बैठी यहाँ सुबह की क्लास के बाद, मैंने कहा चलो माता जी को फोन कर लेती हूँ। सो देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू हर फॉर 2 hours। आई स्पोक विथ हर एंड आई वाज लाइक वाओ, यू नो, दिस इज लाइफ, यू नो, ये बोलते हैं मजा, यू नो, कि जब चाहो तब फोन उठा लो और बात कर लो। तो उनसे जो हमने सीखा, कृष्णचंद्र प्रभु, राधा प्रिया माता जी से जिसने भी सीखा, आई थिंक दैट्स परफेक्ट मैरिज लाइफ, जहां पर हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं, उनके ओपिनियंस को वैल्यू करते हैं, you know, way beyond one's own expectations, but not just
what to speak of abusing each other. वो तो definitely not expected. But ये मैंने क्यों शेयर किया आपके साथ, क्योंकि अगर हम ये सब हमारे शुरुआत के दिनों से नहीं सुनेंगे तो हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. कई बार लड़कियों में ये भी रहता है या लड़कों में भी रहता है, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए. दिस इज वन स्टिग्मा वी ऑल हैव इन अवर सोसाइटी. घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए. और उसमें इतना कबाड़ा हो जाता है कि जब वो ऐसे लिटरली यहाँ तक आता है तब दे अप्रोच सम सीनियर और काउंसलर. राइट, सो वी शुड कंसल्ट इन केस इफ वी हैव सच काइंड ऑफ सिनेरियोज जहाँ पे अब्यूज वगैरह है या जो भी नहीं होना चाहिए वो सब हो रहा है. सो डेफिनेटली रिस्पेक्टिंग एंड वैल्यूइंग ईच अदर टेक्स अ लॉट. बहुत, क्योंकि जैसे कहा ना कि टीनेजर और यंग एज में क्या है, सेल्फ सेंटर्ड और अभी भी सेंटर्ड, राइट. तो वो थोड़ा ट्रांजिशन को टाइम लगता है, बट वो ट्रांजिशन में कंसल्टेशन गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर वो नहीं मिला तो डेफिनेटली वो सब कुछ होगा जो नहीं होना चाहिए. सो प्लीज कंसल्ट इन द प्रीवियस और अर्ली डेज ऑफ मैरिज. टाइमली कंसल्टेशन इज टाइमली नहीं कंसल्टेशन. तो जब पानी सर के ऊपर चला जाए उसके बाद कंसल्ट करेंगे तो उसको रिपेयर करने में भी बहुत टाइम और time बहुत जाए. मेहनत लगती है एंड यस, दोनों तरफ से. एंड फिर वो इम्प्रेशंस भी भूलते नहीं है ना हम. Why to invite ourselves such troublesome traumatic experiences? Instead, consult. Consult when it is time. कंसल्ट द राइट पर्सन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. I think जानवा सभा है. Yeah. So, in the sense, you consult your counselor or somebody whom you have that confidence in, Experience. because one should not go and leak that Yes. thing here and there. So that confidentiality should be maintained. Yes. It's very important. आप उन लोग के पास जाइए जो आपको trust maintain करते हैं. So consultation is very very important. I hope. I Yes, answered thank you, माता जी. माता जी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे. जब टीनेज से यूथ में ट्रांजिशन होते हैं तो फियर ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो क्या होता है कि गर्ल्स व्हेन दे आर इन दैट एज, तो जनरली ऐसा एक फियर रहता है कि अभी हम शादी करेंगे तो शादी के बाद जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी और घर संभालना पड़ेगा. अभी तो सब कुछ इजीली हो जाता है, बाद में जिम्मेदारियां, फिर इन लॉज भी अगर नॉन डिवोटी इन लॉज मिल गए तो उनके साथ हम कैसे एडजस्ट करेंगे. तो ये सारे फियर्स हैं मन में. तो इसकी वजह से लगता है कि थोड़ा शादी डिले करें, ठीक है अभी सोच नहीं रही हूँ, बाद में करूंगी बाद में करूंगी. तो इसकी वजह से मैरिज डिले हो जाती है या फिर मैरिज होने के बाद वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है. तो हाउ डू वी हैंडल दिस सिचुएशन? ये सिचुएशन जनरली ऐसी लड़कियों या लेडीज को आता है जिन्होंने घर में अपने पेरेंट्स को अपने इन-लॉज के साथ नहीं देखा है. Those who themselves come from nuclear families, उनको लगता है family means just our family, no responsibility. और जिन्होंने दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, घर में बुआ, मामा, इन सबको देखा है, उन्हें क्या लगता है, फैमिली मीन्स एक्सटेंडेड फैमिली ऑल्सो. तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है. जो कॉलेज में आजकल लड़कियां आती है जो न्यूट्रल फैमिली से आती हैं, वो लड़कियां जो जॉइंट फैमिली से आती हैं वो उनको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर देती है. राइट. तो अगर हम न्यूक्लियर फैमिली से आ रही हैं तो हमें बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना चाहिए बाय जॉइंट फैमिली पीपल. एंड अगर हम जॉइंट फैमिली से आ रही हैं तो हमें न्यूक्लियर फैमिली वालों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. बिकॉज दैट्स अ फर्स्ट फियर, बिकॉज यू हैव नॉट सीन इट. लाइक इन आवर केस वी हैव सीन आवर मदर सर्विंग इन लॉज एंड ऑल. हमको कभी वो बर्डन लगे ही नहीं. हमको लगा इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड. राइट. तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है. एंड सेकेंड, अगर आपको लगता भी है कि दिस इज काइंड ऑफ अ बॉन्डेज और बाइंडिंग यू, लिमिटेशन है, कितने ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस हैं, क्यों अपने आप को इतने बंधन में रखना है. आई थिंक दैट्स द एटीट्यूड ऑफ जेनजी. जेनजीज जनरली ऐसे सोचते हैं कि जितना फ्री हो सके उतना हम घूम सके. फ्रीडम इज देयर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट दे एस्पायर फॉर. बट एटलीस्ट व्हेन वी कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम यहाँ पर देखते हैं हम कितना वैष्णवों के साथ बंधे हुए हैं. राइट. स्पिरिचुअल लाइफ के बंधन जो हैं वो हमें उलझाते नहीं हैं, वो हमारे जीवन को सुलझाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. आध्यात्मिक जीवन में बंधन हमें उलझाते नहीं हैं, सुलझाते हैं. कैसे सुलझाते हैं? वो भले ही बाहरी रूप से हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शायद बढ़ा दे, हमारे ड्यूटीज को शायद बढ़ा दे, बट इंटरनली वो हमें स्ट्रांग बनाते हैं, वो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं. तो जिसको अगर ऐसे लगता है कि नहीं मुझे सिंगुलर रहना है, तो आपका ग्रोथ कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, क्या आप बचपन से, ऐसा यहाँ पे कोई है जिसका एक भी फ्रेंड नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड. नो फ्रेंड एट ऑल. कोई है?
एवरीबडी इज अ सोशल, एंड स्पेशली लेडीज, भले ही लड़का आपको ऐसा कोई मिल जाए, लेडीज को तो बिना फ्रेंड्स के चलता है कि नहीं चलता है? वाह, यूनानिमसली ना, है ना? दैट मीन्स आप सही स्पीशी है। राइट? तो इट्स वेरी नेचुरल, वुमेन आर बाय नेचर सोशल, राइट? बट वो एक मैरिज के पहले तक वो एंजॉयमेंट के लेवल पे ठीक है, बट वंस यू एंटर मैरिड लाइफ, देन द सेम सोशल थिंग बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंस्टेड ऑफ एंजॉयमेंट, नाउ इट इज आवर टर्न टू सर्व। तो उसको अवॉइड करने के बदले उसे एम्ब्रेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारी ग्रोथ होती है। और जब आपके बच्चे होंगे, जो आपको करने हैं, जब आपके बच्चे होंगे, आप उनको भी यही वैल्यूज पास करेंगे। एस्केपिज्म इज नॉट द सॉल्यूशन टू लाइफ। ये जो मेंटालिटीज, जो एटीट्यूड्स है ना, मैरिज क्यों करना है, इन लॉज क्यों चाहिए, क्यों रहना है, राइट? ये सब क्यों एस्केप करना है आपको? क्यों एस्केप करना है? क्योंकि बंधन है। तो बेसिकली हमें किसकी आदत लग गई है? फ्रीडम की, राइट? बट जब हम भक्ति में बंधन के लिए हम तैयार है, तो भौतिक, जिन्होंने हमको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, जो हमारी शादी कराना चाहते हैं, हमारे घर वाले पति, वो क्यों है? वो भी तो प्रेम के ही बंधन है ना, राइट? सो वी शुड एम्ब्रेस देम इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग देम, बिकॉज इट लीड्स अस टुवर्ड्स ग्रोथ, इट मेक्स अ वुमन कंप्लीट। आई नो इट्स वेरी हार्ड। आजकल के जो क्वेश्चंस है ये सारे, हमारे टाइम पे तो ऐसे क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चंस क्या होते थे? माता जी, बच्चों को बड़ा कैसे करना चाहिए? माता जी, इन लॉज की सेवा कैसी करनी चाहिए? ऐसे हमारे क्वेश्चंस होते थे। अभी क्वेश्चंस क्या है? इन लॉ जरूरी है क्या? मैरिज जरूरी है क्या? सो इट्स लाइक टोटली 180 डिग्री कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चंस है। तो हमें फाउंडेशन से शुरू करना पड़ता है। बाबा, सेवा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम रोज सुबह तुलसी आरती में गाते हैं ना, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। सुबह क्या बोलते हैं? सेवा अधिकार दो। फिर जैसे ही ऑफिस जाते क्या बोलते हैं? सेवा ही नहीं चाहिए बाबा, क्योंकि हम इतने बड़े हैं, ऊपर से टपके हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करनी है, बीच में कोई नहीं चाहिए, पति पत्नी बच्चा इन-लॉज, इतने बड़े हैं हम कि हमको बीच में कोई चाहिए ही नहीं। वी वांट डायरेक्ट कनेक्शन टू कृष्णा, राइट? सो इफ कृष्णा सेज लव मी लव माय डॉग, राइट? अमेरिका में वो सेइंग भी है, राइट? तो अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो उनके जो विस्तार रूप में उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे पेरेंट्स, इन लॉज, फ्रेंड्स, ये सब सेवा के माध्यम हैं। अगर इनकी सेवा नहीं करेंगे तो एडवांस कैसे करेंगे? फिर आप सुबह प्रे कैसे करोगे? सेवा अधिकार दिए, जैसे हम कहते हैं जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। तो कृष्णा क्या रोज आपके घर में आके बोलेंगे मेरे को खाना खिला, मेरे को दूध पिला, मेरे को नहला? बोलेंगे? तो किसको क्या किया है कृष्णा ने? कैसा ट्रीटी बना के रखा है? मैं नहीं बोलूंगा, बट तुम्हारे जीवन में मैंने इन लोगों को दे के रखा है, अपॉइंट करके रखा है। इनकी सेवा करो तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादा, यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि। जब गुरु प्रसन्न होते हैं, कृष्ण प्रसन्न। गुरु प्रसन्न नहीं तो कृष्ण भी प्रसन्न नहीं होंगे। और क्या गुरु हमारे घर में रहते हैं बाजू में, जैसे ऐसे बैठी है लीला राधिका? हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो गुरु ने भी किसको अपॉइंट किया है? हमारे आसपास डिवोटीज को, फैमिली मेंबर्स को। तो फैमिली मेंबर्स आर इनफैक्ट वन ऑफ द वेज टू सर्व एंड प्लीज कृष्णा, टू शो कृष्णा आई एम रेडी टू सर्व। दिस इज द नेट प्रैक्टिस, दैट इज फाइनल मैच। मटीरियल वर्ल्ड जहां पर हमारे रिलेशनशिप्स हैं, वो नेट प्रैक्टिस है। आईपीएल, क्रिकेट, वर्ल्ड कप, राइट, टेनिस, सब कुछ हम जानते हैं। तो ये हमारा नेट प्रैक्टिस है ऑफ सर्विस, एंड ये जब पास होंगे तो हम जाएंगे गोलोक वृंदावन टू डू एक्चुअल सर्विस। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Yes, Mataji, yes. So next question is, does maturity and responsibility depend on experience or environment around us? Because I have seen some of my friends are still childish and some girls are more responsible even if they are younger than me. Any personality is made of two things. One is inclination and second environment. अंदर की भावना या अंदर के जो आपके संस्कार है, जो आप पिछले जन्मों से लेकर आए हैं, और आपके आसपास का वातावरण, जैसे घर में हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे ट्रेनिंग दिया है। बट उसके अलावा एक इंक्लिनेशन भी होता है। इसलिए हम कहते हैं ना, दो उंगली सेम नहीं होती है। तो एक ही घर में किसी को म्यूजिक पसंद होता है तो किसी को म्यूजिक से सरदर्द होता है।
राइट? बच्चे भी सेम। दो बच्चे भी सेम नहीं होते हैं। तो इट्स वेरी यूनिक दैट एवरी इंडिविजुअल कैरीज his or her own set of karmas, desires, inclinations, maturity, karma quota, etc. तो उसके साथ साथ अगर उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला ऑफ ट्रेनिंग एंड मैच्योरिटी एंड अच्छे पेरेंट्स, टाइम बिताने वाले, सिखाने वाले, और उसके अंदर का भी सेंस उतना ही है, देन व्हाट हैपेंस? द बच्चा बिकम्स मोर मैच्योर इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बट अगर उसके अंदर के जो पिछले, दिस इज आवर स्क्रिप्चर्स एक्सप्लेन दैट द साइकिल ऑफ कूटम, बीजम, पापम, प्रारब्ध, अप्रारब्ध. आप लोगों ने सुना है ना? ये हमारे कूट होते हैं यानी कि सिंफुल प्रोक्लिविटीज, राइट? पापम होते हैं, बीज होता है विच आर द सीड्स, देन हम एक्शन करते हैं विच इज पापम. फिर पाप करने के बाद उसका हमें रिएक्शन मिलता है विच इज प्रारब्ध, जो अभी हम, जो हमारा करंट लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है. आप किसी घर में जन्म ले चुके हैं, किसी के भाई बहन है, किसी के पति है, बच्चे हैं, बहू है, फ्रेंड है, नेबर है, जो भी है, ये प्रारब्ध है. अप्रारब्ध इज जो स्टॉक, घर में मम्मी इतना सा आटा लेके रोटी बनाती है, डब्बे में बड़ा होता है ना, व्हाट इज दैट? स्टॉक. तो वैसे बड़ा सा स्टॉक हमारा होता है कहीं तो मेंटेन, जैसे मम्मी के घर में डब्बा होता है ना, ऐसा एक डब्बा होता है चित्रगुप्त के पास हमारे नाम का, उसमें वो सब भर के रखता है जो बचा हुआ रहता है, और वो धीरे धीरे करके हर एक लाइफ में ट्रांसफर होता रहता है. सो सिंपल टू अंडरस्टैंड ना, हमारे घरगुती चीजों से हम कर्मा को कितना अच्छी तरह से समझ सकते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट कर्मा हमें एक प्रोक्लिविटीज मिलती है. तो कुछ जो बहुत नेचुरली मैच्योर होते हैं, मतलब उनके पिछले जन्मों से कर्म इतने अच्छे हैं कि मैच्योरिटी, दे आर ब्लेस्ड विथ मैच्योरिटी. बट दैट डजंट मीन जो इस जन्म में मैच्योर नहीं है वो कभी मैच्योर नहीं हो सकता. सो दैट्स व्हाई आई सेड टू थिंग्स आर नेसेसरी फॉर मैच्योरिटी. व्हाट इज दैट? इंटरनल इंक्लिनेशन एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो जिसको इंटरनल इंक्लिनेशन नहीं है उसको बाहर की ट्रेनिंग ज्यादा लगती है, जिसको इंटरनल इंक्लिनेशन है उसको बाहर की ट्रेनिंग बहुत कम लगती है. फॉर एग्जाम्पल, जिसको गाना अच्छा लगता है या म्यूजिकल सेंस है, पहले से ही लेकर आया है, उसको हारमोनियम क्लास, मृदंगा क्लास जाना ही नहीं पड़ता. करताल हाथ में ले लिया कि अपने आप बजने लगता है. देखा होगा ना आपने ऐसे बच्चे, किसी को कुकिंग बहुत नेचुरल होता है, किसी को सिंगिंग बहुत, वी से दिस राइट, ओ दिस कम्स सो नेचुरल टू यू, दैट मीन्स व्हाट? पिछला कोटा एक्टिव है या एनवायरनमेंट इतना स्ट्रांग है. सो वी हैव टू वर्क अपॉन बोथ. हमारे इंटरनल क्वालिटीज को भी एनहांस करना है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी हमें स्ट्रांग और तगड़ा बनाना है, उससे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है. बेस्ट वे टू गेट योरसेल्फ ट्रेन्ड इज पुट इन द एसोसिएशन, पुट योरसेल्फ इन द एसोसिएशन ऑफ द राइट पीपल. जो भी आपको ट्रेनिंग चाहिए, जिसको सिंगिंग सीखना है संगीत के लोगों के बीच में रहो, जिसको डांसिंग सीखना है, जैसे आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डांसर एज सच, बट मुझे डांस का बहुत शौक है. तो घर में जब कोई हो नहीं हो, प्रभु जी रहते हैं, सासू माँ रहती है, बट जब आसपास नहीं होता है तो मैं ऐसे एक बेलती हूँ एंड कुछ तो ऐसे गाना याद आता है एंड वो बेलन लेके तो ऐसे शुरू हो जाता है. माय हस्बैंड इज लाइक व्हाट इज दिस, कुछ नहीं, एक स्टेप याद आ गया, बस वो करने की कोशिश कर रही हूँ, सो इट्स वेरी नेचुरल, आ जाता है. सो वी हैव टू पुट आवरसेल्व्स इन दैट एसोसिएशन so that we can learn from each other. I hope that answers. So next question is, as per Vedic scripture, men were allowed for more than one wife. Is this correct? What should we do if my husband is having affair outside marriage? As per Vedic scriptures, पुराणों में इसका वर्णन दिया गया है, क्योंकि पुरुष जो है, क्या मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं एक बार क्वेश्चन को? yes. वैदिक शास्त्रों के अकॉर्डिंग पहले आदमी लोग, मेन लोग, पुरुष लोग, सॉरी, पुरुष लोग एक वाइफ से ज्यादा रख सकते थे, एक पत्नी से ज्यादा रख सकते थे. क्या ये करेक्ट है? और मेरे पति का शादी के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, व्हाट शुड वी डू? क्या करना चाहिए? सॉरी टू इंटरप्ट यू ऑन दैट. पुरुष, मैंने कहीं सुना था आदमी एंड औरत इज लाइक द उर्दू वर्ड्स. सो हम इतने यूज टू हो गया कि एन एनवायरमेंट, राइट? हमने जो बचपन में सुना था इट वाज पुरुष, स्त्री, स्त्री धर्म, स्त्री मीन्स विस्तार. कितना कनेक्टेड है ना ये सब कुछ, विस्तार एंड स्त्री, दीज आर ऑल सिनोनिमस टू ईच अदर. बट ये इसलिए मैंने इंटरप्ट किया, सो दैट वी ऑल गेट टू नो कि नहीं, हमको ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है. सो येस, in the past olden days, क्षत्रियाज वर अलाउड टू हैव मेनी वाइव्स. वो भी एक लाइसेंस के अंतर्गत हुआ करता था. जनरली क्षत्रियों को ही वो लाइसेंस था कि वो एक से ज्यादा विवाह कर सकते थे. जैसे दशरथ महाराज की आपने कहानी सुनी होगी, ही हैड 353 वाइफ्स. जब भी परशुराम आते थे वो शादी करने बैठ जाते थे, बिकॉज परशुराम ने डिसाइड किया था
कि जो भी क्षत्रिय है मैं उनका संहार कर दूंगा, क्योंकि उनके पिता का जो देहांत है वो एक क्षत्रिय के द्वारा हुआ था. So Kshatriyas were allowed because they can maintain. वो अपनी पत्नी को मेंटेन कर सकते. What do you mean by maintain? हाँ? Providing for their roti kapda makan, right? Not only roti kapda makan, उनके emotional tantrums को भी वो maintain करते थे, right? So that's why men were allowed, Kshatriyas were allowed, and they also had their need, क्योंकि उनका इतना intense pressure होता था कि they were allowed to have that kind of sense enjoyment, but they would also take responsibility. See, enjoyment does not come without responsibility. हमने civics में पढ़ा था two sides of the same coin. What are the two sides of the same coin for any citizen? याद है किसी को civics? Don't tell me. Rights and duties. Thank you. किसने बोला? Oh, thank you. Very good. Sharp memory. तो ये सब, this is what I tell all the ladies, you know, जो पढ़ा है ना स्कूल में उसको वेस्ट मत करो, जबकि वो वेस्ट ही था, बट उसको वेस्ट मत करो. प्रभुपाद ने जो फिलॉसफी दी है ना, सब मैच द कॉलम होता है, पूरा अच्छा खासा मैच. वी कैन यूज स्टैटिस्टिक्स, वी कैन यूज एक्स एक्सिस. कैन आई रिक्वेस्ट चिल्ड्रन टू मेक लेस नॉइस? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यू नो, सब कुछ चलता रहता है. वो हमने जो सीखा था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो भी हम भक्ति में यूज कर सकते हैं. सो यस, राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. तो जो क्षत्रिय लोग थे वो क्या करते थे, जब एक्स्ट्रा मैरिजेस भी होते थे उनके, दे वर एबल टू मेंटेन देम, दे कुड प्रोवाइड फॉर देम, they could protect them, they would love them, they would ensure everyone gets their quota of love, services and everything else, all of the facilities. But आजकल वो क्या हो गया है, it's only meant for enjoyment, right? It's only meant for your sense gratification. So Kshatriyas were originally allowed, but not in general it was allowed to have extramarital affairs, only for sense gratification. And अगर आज की दुनिया में किसी का है extramarital, then I think we have to consult, we have to sit and talk to the man and find out कि बाबा आप किस हद तक ये रिलेशनशिप में कमिटेड रह सकते हैं. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑन द प्रैक्टिकल लेवल हमने देखा भी है कि कुछ कुछ पत्नियां भी कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ती है कि बाबा तेरा है तो है, मेरा तो चल रहा है ना घर. ऑनेस्टली आई हैव सीन सच लेडीज, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन, सुना है ऐसे? आई हैव सीन सच लेडीज जिनके पास पैसे का और कोई उपाय नहीं है, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर नॉट एजुकेटेड एंड कांट मेंटेन द फैमिली, चिल्ड्रन ऑफ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन. तो वो इतने दुखी होकर एक कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ में वो जीते हैं. बट दैट्स प्रैक्टिकल लाइफ, क्या करें, राइट? बट देन इफ especially in Krishna consciousness, when you are educated, when you have the scope to get it right, to get the situation right, we should talk to the person. It's certainly not allowed and not encouraged to have an extramarital affair. But then अगर ऐसा होता भी है, then you have to sit and talk. But कई बार जैसे मैंने कहा, पुरुष को क्या लगता है, घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, और उसमें घर का पूरा हरी बोल हो जाता है. They are ready for that, but they don't allow the topics to go out. So that's why very important, as she also rightly said, consultation. In fact, Krishna Chandra Prabhu made this very nice point. क्या point कहा उन्होंने कि mentors association is the best insurance that we all have in Krishna consciousness. आज सुबह प्रभु जी ने वो statement कहा ना finance को लेकर, association or the mentorship is the best association, is the best insurance that we all have. तो जब भी ऐसे चीजें हो तो better to consult. Definitely it's not encouraged because it's very hard for a lady to divide. Imagine, द्रौपदी के भी 5 husband थे, right? And बाकी men के तो बहुत सारे थे ही, but Draupadi had the ability to serve and satisfy each and every husband of hers. हमारे अंदर इतनी ability एक की नहीं है, right? और ना एक husband अगर एक wife को संभाले इस जिंदगी में, वही बहुत है. इसीलिए इतने सारे सभा चल रही है कि जो एक आने वाली है ना, उसको कैसे संभाले या जो एक आने वाला है उसको कैसे संभाले, राइट? तो एक को संभालने की क्षमता नहीं है, हम चले 2 के लिए, 3 के लिए, बट दे डोंट वांट रिस्पॉन्सिबिलिटी along with it. They just want their right to enjoy without duty. So you should consult in that case and hope and pray the situation becomes all right. Mataji, very nicely said. जो भी माताजी हैं जिनको ये प्रश्न है, so please consult because it's a serious issue. So one needs to consult that. So Mataji, next question is for arranged marriage case. If the boy is asking to talk and understand each other by talking on phone for 3 to 4 months,
and then decide to go ahead or not. Is this correct approach? ये आजकल का Gen Z. जेंजी वाले क्वेश्चन है ये सब. हमारे टाइम पे क्वेश्चंस बहुत अलग होते थे. माता जी मिलने जाए क्या? मुझे याद है मेरे प्रभु जी ने जब हम पहली बार मिले, जानवा माता जी गॉट अस मैरिड, तो हम एक यदुनाथ प्रभु करके हैं उनके घर पे मिल रहे थे. एंड वी स्पोक एंड हो गया सब कुछ. एंड माई प्रभु जी हैड डिसाइडेड दैट ही विल गेट मैरिड टू मी. एंड आई वाज स्टिल थिंकिंग, लड़कियां ना अकड़ के ही रहती है, ज्यादा नखरे बहुत होते हैं, राइट? तो मैंने बोला तो मुझे तो 1 हफ्ता लगेगा. एंड देन आई वाज टेलिंग प्रेमलीला माता जी, इन्होंने कैसे इतने जल्दी हाँ बोल दिया, कुछ तो गड़बड़ है. स्पेक्युलेटिव माइंड, फुल्ली स्पेक्युलेटिव माइंड. मतलब मैं दोपहर को 4 बजे मैं उस घर से निकली, लोकल ट्रेन पकड़ के घर आई 6 बजे. 8 बजे प्रेमलीला माता जी कॉल्ड एंड सेड, द बॉय सेड यस, व्हाट इज योर आंसर? आई सेड, माता जी इज एवरीथिंग ओके? इज द बॉय ऑल राइट? हाउ कैन ही से यस सो सून? आई सेड, माता जी आई विल नीड 1 वीक, आई हैव टू थिंक. हमारे नखरे ना, हम बहुत इंटेलिजेंट है. ऑफकोर्स वी एज गर्ल्स बहुत डर लगता था ना, कैसे घर में जाएंगे, कैसा रहेगा. So that's very natural. But हमारे टाइम पे ऐसे सवाल हुआ करते थे. And then my प्रभु जी had called me on my birthday after 15-20 days. मैंने हाँ बोल दिया था उसके बाद. तो मैंने तुरंत मेरे काउंसलर को फोन किया, किशोरी माँ जी को, माता जी प्रभु जी का फोन आया. उन्होंने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला, मैंने कहा थैंक यू और फोन रख दिया. So this is how fanatic we were, And then I had spoke to Kishori Matri for 1 hour. I spoke to her, Prabhuji, how can I speak? I mean, we were like extreme fanatics like that. वो extremism है, ऐसे नहीं करना चाहिए. बाद में मुझे आज तक मेरे प्रभु जी सुनाते, एक बर्थडे कॉल किया, होने वाली पत्नी के साथ किया, उसमें तुमने काउंसलर तक फोन कर दिया. So we have made such silly mistakes. So yes, ऐसे हमारे सवाल थे. So I'm just giving you the difference, कि 15-20 साल में कितना generation बदल गया है. But right now when girls ask me, Matri, the boy is asking to talk, the boy is wanting to know more and more, spend some time with each other. आजकल दुनिया ऐसे है कि लोगों को जब तक पहले विश्वास नहीं होता ना, वो आगे बढ़ते नहीं है. हमारे टाइम पे या हमारे पेरेंट्स के टाइम पे कुछ हद तक सिचुएशन ऐसे था कि हम पहले रिश्ता बनाते थे और फिर विश्वास रखते थे. Did you all believe? We all believe this? हम पहले रिश्ता बनाते हैं और विश्वास निभाते हैं. अब क्योंकि सिनेरियो बहुत अलग है, आए दिन हम वी कम टू नो सो मेनी केसेस, अनहेल्दी मैरिड लाइव्स, लिव इन रिलेशनशिप्स, अफेयर्स एंड ऑल. तो लोगों को विश्वास रखना बहुत मुश्किल हो गया है. इसीलिए लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं थोड़ा चलो बात कर लेते हैं. सो इफ यू आर एबल टू सेंस द जेन्युइनिटी, प्लीज गो अहेड एंड सेट अ लिमिट कि अगर वो जो भी टाइम आपसे कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप उनके साथ बॉन्ड होने लगो. एक और चीज मैं लड़कियों को हमेशा कहती हूँ, जो हमने किशोरी माता जी से सुना था, जब तक हाथ में गले में मंगलसूत्र और माथे पे सिंदूर, शादी हुई विश्वास ही नहीं करने का. वो लड़का कितना भी बात कर ले, कितना भी घुमाने लेके जाए, कितना भी इधर उधर जाओ, कितना भी यात्रा में इधर उधर, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, तभी तू मेरा, नहीं तो मुझे तुझसे कुछ लेना देना नहीं. बिकॉज शादी होने तक क्या हो सकता है, ऑफकोर्स वी शुड नॉट बिकम रूड, वी शुड नॉट बिकम डिसरिस्पेक्टफुल. और मैंने उसमें अभी तीसरी चीज डाल दी है, स्पेशली इनिशिएशन को लेकर कुछ लोग बहुत सालों तक रुके हैं, तो मैंने उसमें तीसरा चीज डाल दिया था, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और हाथ में बीड्स. जब तक मिलते नहीं है, विश्वास नहीं करने का कि शादी हो गई है या इनिशिएशन मिल गया है. बस बहुत लोग इनिशिएशन के आसन तक जाकर वापस आते हैं, राइट? सो 3 थिंग्स दिस है, बिकॉज इट्स सो अनसर्टन थिंग्स. बट तभी जमाना वैसे था, इट्स वेरी डिफरेंट. बट नाउ इट इज एज आई सेड, पहले लोग विश्वास देखना चाहते हैं, दे वांट टू हैव दैट कॉन्फिडेंस. सो यू कैन गो अहेड व्हाइल कीपिंग इन माइंड यू आर नॉट एक्सप्लॉइटेड. गर्ल्स हैव सिक्स्थ सेंस टू नोट इट. लड़कियों को होता है ना सिक्स्थ सेंस, समझ में आता है कि कौन हमारा फायदा उठा रहा है, कौन हमें राइड पे ले रहा है, कौन हमारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है. तो वो जैसे ही आपको सेंस होने लगे, यू शुड कीप अ डिस्टेंस, राइट? एंड जहां भी आपको ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे लगे, इन्वॉल्व अ सीनियर. कंसल्टेशन इज बाय डिफॉल्ट आवर कंपेनियन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ. कंसल्टेशन बहुत जरूरी है एट एवरी स्टेप. और अगर बात करना पड़े तो कुछ समय तक, उसका भी एक सीमा रखना चाहिए. आई वुडंट से 3-4 महीने से ज्यादा रखना चाहिए, बिकॉज 6 महीना इज अ टाइम लॉन्ग इनफ जहां पर आप हार्ट से बॉन्ड होने लगते हो. द पर्सन स्टार्ट्स becoming favorite and you start mentally getting attached to him, then it becomes very difficult if it doesn't work out. So आपको attachment तब develop करना चाहिए when almost things are becoming finalized. Is that okay? हमारे टाइम पे सगाई और शादी के बीच में भी
used to at that talk, place. So उस समय पे भी we used to get that window. window to know each other, Yeah, to yeah. understand each other, जमेगा नहीं जमेगा. So yes, आजकल वो I think ज़रूरी हो गया है मैरिज बोर्ड में भी, that एक बार बात करो, 2 बार बात करो, कभी कभी तीसरी बार, कभी कभी थोड़ा हफ्ते में एक बार, and मिलो, you ask your hobbies, you ask your choices, आपके likings वगैरह, तो हो गया है natural. अभी situation ऐसा, I can't say don't talk, you are unchaste. I don't know, I mean, I can't. But that's right. That's right. I mean, we have to change As per the time. So we only thing is that yes, we don't meet physically. We don't have that physical intimacy. Physical intimacy, and even at heart, you should be very clear you're not exploited. As I said, every girl has a sixth sense. Ensure you're not exploited and taken advantage of. Forget, having any physical things and all. वो तो बहुत दूर की बात है. Emotional investment नहीं करना चाहिए. It should be intellectual only. Only, yeah. Emotional investment नहीं होना चाहिए. Yes. Do you want to end? आप लोग बोर हो रहे हैं तो हम end कर देंगे. So our next session is also panel discussion. We have lots of questions here. Yes, we can take direct questions. Physically. And ये सारे questions we have next panel discussion only. Okay, so we'll take these questions. We have heard from Shastra that wife should be submissive to husband, but I want to understand to what extent, and if they are going wrong, then in that situation what to do, and also sometimes some people they have a tendency to just keep correcting everyone. So at some point, I'm not a pure devotee, so my ego gets bruised, right? So being constantly corrected. So how to become submissive in that situation? Should you become submissive in that situation? How to do it? Submissiveness is an internal consciousness reflecting in our behavior. Submission is not just anything in life or Krishna consciousness works both ways, internal and external. Submission is necessary क्योंकि as प्रकृति हम सब कृष्ण के दास हैं. तो जैसे मैंने कहा, family is a representative of Krishna in our life. Friends, devotees are representative of Guru and Krishna in our life. तो वहाँ पे तो submission अप्लाई करना ही है, वहीं से हमारी प्रैक्टिस शुरू होती है. बट ऐसा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए कि हम आउट हो जाए. राइट? प्रैक्टिस इज मेंट टू मेक अस मोर परफेक्ट एंड कॉन्फिडेंट, नॉट completely finish us or destroy us or discourage us. So open discussions are very important in any relationship. जहाँ पर आपको लगता है it's getting hard for you to sit and or rather to simply continue with so-called submissiveness, जबकि आपको लग रहा है कि your point of view is not understood, then sit and talk, have a discussion, and always try to we always say this in Krishna consciousness, do something which you want to do and something which you should do. That's what service should be consisting of. कोई भी सेवा जब हम लेते हैं भक्ति में, हमें ऐसे प्रकार की सेवाएं लेनी चाहिए जो हमें अच्छी लगती है, और कुछ जो भले ही मुझे अच्छी नहीं लगती है मुझे वो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए प्रैक्टिस है, वो हमारे लिए सबमिसिवनेस का प्रैक्टिस है. राइट? तो वैसे ही एनी रिलेशनशिप में जो आपको बहुत नेचुरली आता है उसमें सबमिसिव होने की जरूरत नहीं. सपोज किसी को कुकिंग अच्छा लगता है, तो हस्बैंड बोलेगा मुझे खाना खाना है, तो वाइफ तो उछलते उछलते कुकिंग करेगी. क्यों? क्योंकि कुकिंग उसके लिए नेचुरल है. बट अगर हस्बैंड बोलेगा जा बैंक में जाके ये खाता का ये करके बैंक का कुछ काम करके, तो वाइफ आप जाओ ना, मैं घर में आपके लिए अच्छे अच्छे पकौड़े बना के खिलाऊंगी. तो हस्बैंड बोलेगा अरे मुझसे नहीं हो रहा है इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ. So there should be always a balance of what you like to do and what you don't like to do, or what you should do. Let me put it in that way. तो सबमिसिवनेस में भी ऐसे ही हमें ये बैलेंस मेंटेन करना चाहिए कि जब हमें लग रहा है कि हम नेचुरली सबमिसिव नहीं हो पा रहे हैं इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, या सामने वाला हमसे कुछ ज्यादा अपेक्षा कर रहा है जो मेरे नेचर के खिलाफ या अगेंस्ट है, सिट एंड टॉक. मिडवे सॉल्यूशन इज ऑलवेज विन-विन सॉल्यूशन. अगर मैं कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप रोज सब्जी लेकर आओ. सिंपल एग्जाम्पल, जब मैं अनमैरिड थी एंड हम ऑफिस से घर आते थे
And Monday to Friday we used to work, almost Saturday also. Sorry, Saturday यहाँ पे छुट्टी होती है, बॉम्बे में Saturday छुट्टी नहीं होती है by the way. IT people are very lucky to have weekend. हमको तो एक ही weekend होता था, वो दिन एक ही दिन Sunday. तो हम Monday to Saturday ऑफिस में रहते थे एंड Sunday को हम लोग पूरा दिन मंदिर जाते थे. मम्मी used to get so bogged down, तो घर पे करती क्या है? तो पूरा दिन 6 दिन तो ऑफिस में और एक दिन मंदिर में, तो घर का क्या है? So then, I used to feel, no, I should do something for the house. फिर मैं ऑफिस से 9 साढ़े 9 बजे जब मैं लौटती थी तो मैं पूरा 2 बैग भर के सब्जियां लेकर जाती थी ताकि मम्मी शांत हो जाए. And then take them and dump it in the fridge and mummy is like, चल मेरा एक काम हो गया. So this is what, even though I don't like it, I do it because I want to show that I am also trying to be submissive or part of my surrender to you, my duties towards the house. So it should always be a balance of both. And if it is going against your nature, sit and talk. So you should never, submissiveness while you're getting exploited is no more submissiveness. It's just ruining yourself because एक ना एक दिन वो whistle कुकर का फूटेगा, right? उससे अच्छा बात करो, mid point पे आओ and दोनों एक pact बना के, you see this is possible, this is not possible, can we go ahead with this? I think that's how it will work more in practical relationships. I hope that answers your question, Khushi. Thank you. Yes. Do you want to take or you want to end? Hare Krishna. Mataji, my question is regarding work. Ever since we were in school and in colleges, we did and excel in every academic. So many of us did also, but marriage, there is only family and so how much when we have that potential that we can really make very good out of it. So should we sacrifice it or on the stage and family? The question to that question, like I have a daughter, so train her. Should I ask her to be a good doctor or engineer, and how should I train her to be a good householder? So where is that line? It's too many questions in one question. एक चीज याद रखिए, लाइफ में उड़ने के लिए कोई पाबंदी नहीं है. जितना उड़ना है पूरा आसमान तुम्हारा है. The sky is yours. Fly as high as you can. But our feet should be on the ground. Have as many ambitions. जैसे I myself, I have worked in stock markets, I have worked in recruitment companies, and both the places I was the top biller, and I loved my work. मतलब अभी भी मुझे मेरे कंपनी का बॉस सपने में आता है कभी कभी, वो हाल है कि मुझे बुलाता है, क्योंकि उसने मुझे बोला था तू जाएगी तो मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा. लिटरली उसने पीछा नहीं छोड़ा, So it's very natural when we study, when we have ambitions, when we have excelled at academics, we feel, हम क्या कर रहे हैं, वो है उड़ना. बट धरती हमारा परिवार है, वो हमें जकड़ के, वो हमें जकड़ के नहीं, वो हमें अच्छे से एक स्थिरता में रखता है. So as we discussed about, from teenager when we go towards youth, responsibilities are very natural. Similarly, from youth when you go to married life and become a mother, it's very natural. In fact, Shastras say a woman is complete when she becomes a mother. वो cycle complete नहीं होता है. And remember, even Golok Vrindavan में one of the topmost devotees is Yashoda, Mother Yashoda. तो वहाँ पे भी वो इतना valued है. Right? So woman is naturally a mother actually, even if you're not a biological mother, you're still a mother. Because वो बहुत naturally आता है हमारे अंदर. कोई गिर गया, किसी को भूख लगा है, किसी को नींद आ रही है, कोई ऐसे थर कांप रहा है, तो हम तुरंत एक कपड़ा डाल देंगे, अरे ना. Comes very naturally, right? So when Krishna has given us that opportunity in the form of this beautiful child, why not? So only thing practically that we can do is, after so much of investment in studies and profession and all of it, when you get married, if you plan, if you have a child immediately, give yourself completely to the child. Because your career can wait. Your child's childhood will never wait. That cannot come back. So first priority is children. First priority is home. क्योंकि मैं हमेशा, even for the ladies who serve in the temple, I always tell them, temple के लिए दूसरा मिल जाएगा, तुम्हारे बच्चे के लिए दूसरा नहीं मिलेगा. तुम एक ही माँ हो बच्चे के लिए.
राइट? सो दैट डजंट मीन टेम्पल में कुछ नहीं करना है. वी हैव टू प्लान. बच्चा हमेशा छोटा नहीं रहता है. दैट्स अनदर ककून वी गेट इनटू, यू नो, अनदर एक्सट्रीम. मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा. अरे वो हमेशा छोटा नहीं रहता है, वो कभी बड़ा भी होता है. राइट? तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फेस बदलता है, देन डेफिनेटली वी हैव टू एम्ब्रेस टू अदर हॉबीज. बिकॉज ये बहुत नेचुरली ये साइकिल आता है वुमेन में. व्हेन दे गेट टू 40s ना, क्या होता है, बाय 23-24, कंसिडरिंग द प्रेजेंट कलयुगा, यू गेट मैरिड, you have some good profession, career, and then by 30 you have say 2 kids. 30 तक 2 kids वो बहुत आइडियल सिचुएशन है. आजकल 30 पे शादी भी नहीं होती है. आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years, you know, backwards. तो 30 पे अगर मैरिज भी हुआ तो बच्चा स्कूल जाएगा, आएगा, वो घर पे आएगा, तो आई वांट टू बी अराउंड. When girls say like this, no, I don't want my child to come back home. I've heard from some of the biggest celebrities of the world, you know, that when the child comes back home finding none in the house, that's the biggest nightmare the child can ever have. तो जब बच्चा घर आता है, हमें ऐसे मिला था, तो हम अपने बच्चों को क्यों वंचित रखें? Right? So we should be there to spread those arms and embrace and say, you know, your mother is waiting for you, please come. Right? But जैसे ही वो खत्म होता, वो एज जब एक टाइम होता है जब बच्चे को भी लगता है, मम्मा अब मेरे फ्रेंड सब कुछ, हाँ अभी, अब तू अपना देख, मैं अपना देखता हूँ. You know, so when that time comes, you can always get back to your hobbies, passion, and definitely excel later on at some point or the other. I think Leela Radhika is a very good example. I remember having discussion on the same topic with her a few years ago, right? Same topic, and I see how well she is excelling in her field of teaching and whatever. CA, right? You have done law, BDS, sorry. The CA, CFA, BDS, जो भी आपको करना हो. Once children grow up a little bit, this is the best example to see. राइट? तो जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, गेट बैक. वरना 40s में वो मिड लाइफ क्राइसिस आता है. क्या किया मैंने अपने लिए, पूरा टाइम बच्चों को दे दिया, बच्चों को भी मैं चाहिए ही नहीं, अब मैं क्या करूं? नाउ इट्स 15 years of gap between me and my career, my hobbies, my, you know, passion. How to achieve that passion now? So your dreams are never meant to be shut off. They can wait. Prabhupada ने कहा था, you can postpone the order of your spiritual master, but you cannot deny it. So similarly, don't deny your dreams, but you can postpone them. And another thing which I tell all the ladies and the girls is, live in the present. बच्चा हाथ में है, तुम मतलब जो भी लड़कियां सोचती हैं, don't think about how well was your office, how thrilling was my office, you know. And ऑफिस में बैठ के किसी को ऐसी इच्छा होती है, there are girls who feel, इसके हाथ में तो बच्चा भी आ गया, मेरे मांग में सिंदूर भी नहीं आया है. Grass is always green on the other side. Live in the present. Live as if you'll never get this moment again. Whether it is your work, whether it is your studies, whether it is your motherhood, or whether it is your service in the temple. Live as if you'll never get this opportunity again. Once you are done with that responsibility to a particular weightage, then, you know, we have to be very smart to get back. कि बाबा इसको मेरी जरूरत एक पॉइंट के बाद नहीं रहने वाली, अब टाइम आ गया मुझे अपने बारे में सोचना है. You understood? So do your best and still keep that alive, that spirit, that spark alive within you. Because you never die. Individuality never dies, whatever you become. Okay? Thank you very much. Hare Krishna. And also it feels like ये phase कभी end नहीं होगा. Especially जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, mothers को, because the job is so tiring, 24-hour job, तो ऐसा लगता है it is never going to end. But the phase ends. The reality is, वो map and territory हम जो बात कर रहे थे ना, but the phase actually ends and हम वो देखते हैं कि बच्चे हमसे अब इंडिपेंडेंट हो रहे थे, don't need us now. So then, you know, उस समय थोड़ा सर्विसेज उठाते जाना चाहिए. And then there will be a time जब वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे and we'll have a lot of time for our services and job, whatever we want to do. Thank you so much, Mataji. So these, because we have next session now after 10 minutes break, और ये सारे questions अभी panel discussion में ही लिए जाएंगे. Thank you so much, Mataji. So we'll thank her by loudly chanting, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.